Okay, so today we'll deal with a new topic, that is dropsy of fetal membrane. Okay, so that is your actual topic. And before going to the actual topic, that is dropsy of fetal membrane, we'll overall see what is dropsy actually. Dropsical condition कहाँ कहाँ होती हैं, और फीटल ड्रॉप्सी, जब फीटल मेम्ब्रेन्स की ड्रॉप्सी है तो वहां पे आपको क्या डिफरेंट मिलेगा. Okay, so now we'll see what is the actual dropsy condition. So if there is deposition or accumulation, that is abnormal accumulation of serous or syrupy fluid inside body cavity or tissue, then it is termed as hydrops or dropsy. In general, dropsy is like accumulation of uh, abnormal accumulation of fluid. Okay, it will be rapid, it will be slow, but there will be abnormal accumulation more than needed, will be uh, you know more than needed quantity will be deposited. Okay, so that is overall condition of dropsy. Okay, now we will see what are the various ways of dropsy in a animal. So uh, dropsical condition in animal practice, we see three type of dropsical conditions. So first is dropsy of placenta. So there will be abnormal accumulation of fluid like dropsy. The condition dropsy is defined here. So abnormal, wait, wait. Okay, so dropsy of placenta means there will be accumulation, abnormal accumulation of fluid in chorioallantoic membrane. You know what is chorioallantoic membrane, what is amniotic membrane. Okay, so the fetus is surrounded by several sacs which are made by several membranes. So immediately after the fetus, there is amniotic membrane or amniotic cavity, that is called amniotic cavity, and the fluid present inside that is amniotic fluid, and after which there will be chorioallantoic look wait okay, so first is dropsy of placenta, then another condition is dropsy of fetus. The fetus itself, you see in a pregnant uterus, what three structures you can see? You can see placenta. Okay, you can see fetus itself, and you can see fetus surrounded by several membranes, that is amniotic membrane, that is allantoic membrane, allantoic cavity or allantoic chorioallantoic membrane. So if chorioallantoic membrane is getting dropsy, means that is dropsy of placenta. Example is placentitis. If suppose fetus itself is getting dropsical condition, now the thing will be called fetal ascites. Okay, and if suppose membrane surrounding the fetus is getting dropsy, then there are two uh, specific condition to this: hydroallantois and hydroamnios. So name itself is suggesting that hydroallantois means this allantoic membrane, allantoic cavity itself is actually not membrane. Allantoic cavity is over accumulated by abnormal fluid, and if amniotic membrane is getting abnormal and huge amount of this fluid accumulation, then this will be termed as hydroamnios. So we'll see one by one. No, you are not allowed, you are not allowed. Now it's over. सर ड्रॉप्सी और इन्फ्लामेशन में क्या डिफरेंस है? इन्फ्लामेशन में आप देखोगे 5 कार्डिनल साइंस मिलेंगे आपको इन्फ्लामेशन में. ओके, इट इज नॉट जस्ट mere accumulation of fluid. Mere accumulation of fluid is different.
Inflammation means you see dollar, collar, rubor, tumor, functionalisia, right? So there will be pain on touch. There will be reddish coloration due to high this more blood will be there. So coloration will be there. Will be a kind of reddish. Size will be increased. Then there will be pain on touch. Okay, and there will be loss of function will be compromised or it will be lost. Okay, so when it comes to accumulation of fluid, there is only one sign, that is the size of the that particular organ where the fluid is accumulated will be uh, will be more, but when you touch it, it will fluctuate, right? The same thing happens to this edema condition as well. So as and when you are touching it, so the fluid accumulation will be fluctuating. But in case of inflammation, you will not see. And yes, inflammation, there will be heat generation, means that the part where the inflammation is there, it will be hotter than the normal surrounding tissues, right? So here in mere accumulation will not cause any kind of warmth or any kind of pain or any kind of discoloration. Yes, there will be size will be increased a little bit, but other signs will be will not be there, right? Yes. Clear? So now we will see सर yes, तब इसको ओडीमा बोल सकते हैं सर? एडीमा, एक्चुअली एडीमा के अलग साइन है. एडीमा कैरेक्टरिस्टिक एक्यूमुलेशन के बाद अगर कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलते हैं, जैसे एडीमा अगर आप बोलें बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक इसका मार्किंग है कि पिट्स ऑन प्रेशर. ओके, पिट्स ऑन प्रेशर मींस व्हेन यू अप्लाई प्रेशर ऑन ए एडिमेटस टिश्यू, देयर विल बी पिटिंग, देयर विल बी छोटा सा गड्ढा. पिट मतलब छोटा सा गड्ढा बन जाएगा जहां पे आपने प्रेशर अप्लाई किया है, और वो स्लोली वो इट विल टेक सम सेवरल सेकेंड्स टू बाउंस बैक. ओके, नॉर्मल आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. इन्फ्लामेशन में तो दबेगा ही नहीं. ओके, एडिमा में दब जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा. फ्लूइड एक्युमुलेशन में इट विल बी फ्लक्चुएटिंग, लाइक आई सेड, इट विल बी फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएशन होगा. आप प्रेशर अप्लाई करोगे, साइड में जाएगा, फिर अप हो जाएगा. सो काइंड ऑफ एडिमेटस, बट यू कैन नॉट सिंपली डिफाइन कि नहीं एडिमा और फ्लूइड एक्युमुलेशन आर सेम. ओके, एडिमा के अपने कैरेक्टरिस्टिक है, जैसा मैंने कहा पिट्स ऑन प्रेशर, ये सबसे बड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? क्लियर? आगे चले. सर ये ड्रॉप्सी में जैसे कि जहाँ नॉर्मली फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है कुछ प्रोटेक्शन या कुछ रीजन से, तो वहीं पे फ्लूइड ज्यादा हो जाता है कि जैसे जहाँ फ्लूइड नहीं भी है वहां भी एक्यूमुलेट होता है? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. ये फ्लूइड ऑलरेडी देयर इज एमनियोटिक फ्लूइड, देयर इज एलेंटोइक फ्लूइड. ओके, द थिंग इज एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन. इसलिए आप अगर आप पहली स्लाइड देखोगे ना, लुक, ड्रॉप्सी का कंडीशन ही है एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन. मतलब पहले एक्यूमुलेशन था वहां पे थोड़ा बहुत, राइट? लेकिन यहाँ पे जब इसकी बात करोगे, ये ड्रॉप्सी ऑफ फीटल मेम्ब्रेन की बात करोगी, तो उस पर्टिकुलर कैविटी में ऑलरेडी एमनियोटिक फ्लूइड था, ऑलरेडी एलेंटोइक फ्लूइड था, लेकिन अभी 10 टाइम्स ज्यादा एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट? सो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है. सपोज देखो, आप सेकेंड पॉइंट आप देख लोगे, आपको पता चल जाएगा. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके देख लेते हैं, आपके डाउट्स यहीं पे क्लियर हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज रेयरली अकरिंग डिजीज, इट इज वेरी वेरी रेयर. ओके, शायद आप में से बहुत से लोगों ने अपने लाइफ में कभी देखा भी नहीं होगा, राइट? Second point, if you see rapid accumulation of watery amber color fluid. Now you remember what is the consistency of allantoic fluid, normal allantoic fluid. Okay, it is urine-like, means watery, amber color watery fluid. So the same fluid, if it is getting over accumulated, means look at this, 150 to 250 liters versus 10 liters. So normal volume is 10 liter only, but it is heavily accumulated here. It is going 10 times, 15 times, 20 times. Okay, so then only it will be called as a hydroallantois. Clear? Now, because
so much fluid is accumulated. So what will happen? There will be bilateral distension of abdomen. See, first of all, you try to understand one thing. Any body cavity, if it is getting over, I mean, if it is getting more fluid or more volume, okay, and if it is expanding its volume, so the neighboring cavity, neighboring tissue has to compromise. Okay, अब देखो यूट्रस, यूट्रस में इतना सारा फ्लूइड है, यूट्रस में इतना सारा फ्लूइड ऑलरेडी है, उसके बाद भी 10 या 15 गुना फ्लूइड और ज्यादा है, तो यूट्रस क्या होगा? स्ट्रेच करेगा, बढ़ेगा, राइट? अब आप पॉसिबिलिटी देखिए, बैक साइड देयर इज बोनी पेल्विस, देयर इज नो स्कोप, ओके, वहां पे स्पेस नहीं है, साइड में स्पेस है। तो आप ये गाय का अगर फिगर देख रहे हो तो आप ये देखिए कितना ज्यादा बाइलेटरल डिस्टेंशन है, बिकॉज दिस इज द इजी वे टू एक्सपेंड। यहीं पे जगह है, वो आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद क्या होगा? नाउ द यूट्रस विल पुश रूमेन असाइड, रूमेन को पुश करेगा आगे की तरफ, ओके, रूमेन को आगे की तरफ पुश करेगा। उसके बाद अब रूमेन को आगे की तरफ पुश करेगा, व्हाट विल हैपन? द फीड इनटेक विल बी minimized because there is no space. Rumen itself is a big organ, right? Again, if it is even more, then it will press lungs, it will press heart. So if it presses heart, then what will happen? Tachycardia will be the sequelae. If it presses this diaphragm, then what will happen? The lungs will get a little area to expand, and therefore there will be breathing abnormalities. Okay, so ये आपके दिमाग में होना चाहिए जब आप आगे बढ़ते हो, ठीक? So first of all, what you will see, accumulation is very severe, 10 liter versus 150 to 250 liters. Okay, now because that much fluid is accumulated which is abnormal, so there will be bilateral distension of abdomen which can be observed through distance. दूर से ही आपको दिख जाएगा कि ये तो sometime it is called bloated bullfrog like appearance, bloated condition लगती है आपको, okay? Mostly it happens in last trimester, लास्ट के 2 महीने या लास्ट के 1 महीने में owner will come and he or she will say that animal was quite normal, but immediately within 21 days or 30 days the abdomen size has increased like anything. Okay, so that will be the primary complaint. Okay, now you see if stats, if you allow stats, so out of 10 cases of dropsy of fetal membrane, you will see almost 9 cases from hydrolenteritis. Okay, hydroamnios is very rare, very rare indeed. Okay, so now coming to the etiology and root cause. Okay, so don't see the upper half of the slide, just you concentrate on lower side. So what is the root cause of this particular condition, pathological condition? Okay, so first root cause is there is decreased placental vascularization, means the blood supply to the placenta is minimized and it is reduced. So blood circulation is not proper. Again, after which what will happen? There is altered membrane permeability. Altered means it's not normally permeable. The membrane, which membrane? Allantoic membrane, because cavity is allantoic cavity. Okay, so allantoic membrane, the cells of lining of allantoic membrane, their membrane permeability has increased, okay, altered, and they are more permeable to water and other salts. Okay, now you see in one way it is the membrane permeability has increased, and other way you see the active transport of sodium is reduced, means now the sodium which is thrown out of the cavity stays inside. You're getting?
एक सिंप्लीफाई करके मैं बताता हूँ। पहला तो जो ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ गई, मतलब बाहर से कोई भी फ्लूइड या कोई भी साल्ट या कोई भी चीज अंदर आ सकती है, इंक्लूडिंग सोडियम, वाटर और एनीथिंग। ठीक है, ये सारा कुछ अंदर आ सकता है, मतलब मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर, और ये आएगा। बट सोडियम जिसको बाहर जाना चाहिए, एक्स्ट्रा सेलुलर जाना चाहिए, वो अब नहीं जा पा रहा है। ओके, उससे होगा क्या? you know sodium has a capability to, you know, it's a hydrophobic compound, right? Hydrophobic means water lover. Okay, it attracts water. So if I'm correct, one sodium molecule attracts or binds 5 water molecule, मतलब 5 गुना, अपने से 5 गुना उसको वाटर मॉलिक्यूल्स को लेके आता है। तो एज एंड व्हेन द सोडियम कंटेंट इज मोर, द वाटर कंटेंट विल बी मोर ऑटोमेटिकली, नॉट ओनली मोर, इट विल बी वेरी वेरी ह्यूज, बिकॉज 5 गुना ये वाटर मॉलिक्यूल को लेके आ रहा है, राइट? सो ये एक इसका रूट काज है। देन थर्ड इज रैपिड एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। वंस the sodium content is more, it is attracting more water, means there will be rapid accumulation of fluid. Okay, इतना क्लियर हुआ यहाँ तक? अब certain predisposing factor, you can't say predisposing factor, these are very very potent cause, actually pathological or etiological cause for this hydramnios, hydroallantois to happen. One such thing is reduced placentome, placentomal differences. So reduced placentomes, कैसे reduce हो जाएंगे placentome? क्या रीजन हो सकता है? कोई तरीका? सारे सो गए? सर अगर स्ट्रेच होगा सर तो ऑक्सीटोसिन का रिलीज ज्यादा होगा। अरे कहाँ, ऑक्सीटोसिन में कहाँ चले गए? सर ब्लड सप्लाई ही कम हो जाएगा तो फिर तो डेवलप नहीं होगा। नहीं, look, suppose there is a dystocia, there is a case of dystocia, or there is a RFM condition, retained fetal membrane. Okay, what you are doing, you are trying to pull this fetal membrane, तो wear and tear की वजह से प्लेसेंटोम्स, हर पैरिटी में कुछ नंबर ऑफ प्लेसेंटोम्स घटते चले जाते हैं। कितने होते हैं वैसे प्लेसेंटोम्स का नंबर एक काऊ में? 150 120 सर। हाँ, 70 to 120 is the range. Okay, 90 to 120 लोग बोलते हैं, कहीं 70 to 120, मोस्टली ये रेंज होती है। बट एनी हाउ, सो हर पैरिटी में अगर सपोज डिस्टोकिया हो गया, अगर सपोज फीटल मेम्ब्रेन, रिटेन फीटल मेम्ब्रेन हुई, उसकी वजह से कुछ प्लेसेंटोम्स के नंबर कम होते हैं। ईदर द नंबर इज बिकॉज द नंबर इज डिक्रीज्ड, सो व्हाट विल हैपन, the remaining placentomes will take a bigger size. कंपनसेटरी इफेक्ट होता है ना, तो उसके चक्कर में इनका साइज बढ़ जाएगा. सो दैट इज वन रीजन ऑफ प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी which is causing which is actually a potent cause of hydroallantois. Okay, the second is adventitious placentation. What is adventitious placentation? Means there will be smaller growing placentomes between normal placentomes. Suppose the number was 100 previously, now it has reduced to suppose 50 or 60 placentomes ka number, right? So now function will be impaired. So in order to cope up that function, small growing placentome used to grow between 2 or 3 normal placentomes. तो छोटे छोटे प्लेसेंटोम जैसे स्ट्रक्चर दो प्लेसेंटोम्स के बीच में ये स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस प्लेसेंटेशन. ओके, सो दैट इज second etiological factor. Third is torsion of umbilical cord or uterus. So uterine torsion is one such region. Again, if you see torsion of umbilical cord or uterus, so what it will do? It will reduce the placental vascularization.
You understood the relation of these two? यहाँ इसमें टॉर्सन हुआ और उसकी वजह से ब्लड सप्लाई टू द प्लेसेंटोम्स विल बी रिड्यूस्ड. सो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कहीं ना कहीं. फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज twin or multiple fetus or hydronephros, means renal compromised kidney. Kidney function is kidney is compromised if it is there is accumulation of fluid within the nephron or within the this kidney, so it will adds up in putting more fluid inside the other cavities including this allantoic cavity. Okay, so यहाँ पे ये 4 बड़ी important etiological factors हैं. किडनी का क्या रोल है यहाँ पर? है जी, सर किडनी का क्या रोल हो गया सर रिड्यूस करने में? बिकॉज एक्चुअली जितना भी फ्लूइड है वो यूरिन लाइक फ्लूइड है. ओके, सो ये मेम्ब्रेन के थ्रू जितना भी फीटल एक्सक्रीटा, यू कांट से एक्सक्रीटा, जितने भी मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स हैं वो इसके मदर और क्या बोलते हैं आप, जैसे फीटस का नेफ्रॉन है वो जितना भी मेटाबोलाइट्स रिलीज करेगा, ओके, डिटॉक्सिफिकेशन के बाद जितने भी मेटाबोलाइट्स रिलीज करेगा वो क्या होगा, वो इसमें allantoic fluid में आएगा एंड दैट विल बी ऑटोमेटिकली टेकन आउट, मदर के किडनी में जाएगा एंड देन इट विल बी फ्लश्ड आउट. ओके, सो इफ फीटल नेफ्रॉन और फीटल किडनी इटसेल्फ इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, सो क्या होगा, यहीं पे एक्युमुलेशन होता चला जाएगा, राइट. और चूंकि फीटस अंदर ही एमनियोस और एलेंटोइक कैविटी के अंदर, उसके एमनियोटिक कैविटी के अंदर ही है, तो ये सारा एक्युमुलेशन बाहर नहीं जा पाएगा, एलेंटोइक कैविटी में ही एक्युमुलेट होता रहेगा, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज यूरिन लाइक फ्लूइड. ओके, सर ये रिड्यूस नंबर वाला समझ नहीं है सर, कैसे रिड्यूस होगा प्लेसेंटोम्स का नंबर? प्लेसेंटोम्स का सुना नहीं आपने? प्लेसेंटोम्स का नंबर कैसे रिड्यूस होगा? सर डिस्टोकिया से इसका क्या लेना देना सर? हाँ, डिस्टोकिया से इसका लेना देना ये है कि जब भी डिस्टोकिया होता है, ओके, सो देयर इज, तो आप क्या करते हो, आप मोस्टली ज्यादातर केसेस में डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ट्रैक्शन लगाना होता है, ठीक है, आप खींचते हो. इन केस ऑफ फील्ड जब भी होता है ट्रैक्शन, मोस्टली वो लोग थोड़ा रफली लगाते हैं, या इवन अगर आप नॉर्मल भी लगाओगे ट्रैक्शन, सो बिकॉज यू आर पुलिंग आउट 40 और 45 और 50 kg बिग फीटस, और प्लेसेंटोम्स उसी के क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में वहां से टीयर हो जाते हैं, पूरा का पूरा प्लेसेंटोम ही उखड़ के आ जाता है. दैट इज वन डिस्टोकिया. सेकेंड, आरएफएम. अगर आप आरएफएम में देखें, एक्चुअल आरएफएम को रिलीज करने का तरीका क्या है, यू पुट योर हैंड इनसाइड द वेजाइना, locate every placentum, squeeze the placenta out of it and pull out. Okay, squeezing में बहुत बार wear and tear होता है, पूरा का पूरा placentum उखड़ के बाहर आ जाता है. Even in field condition आप करते क्या हैं, थोड़ा सा प्लेसेंटा अगर नीचे लटका हुआ है तो आप क्या करते हैं, उसमें वो लोग खींचना चालू करते हैं. सिंपली अंदर से उन्हें निकालना नहीं है, वो सीधे उसको रस्सी की तरह खींचना चालू करते हैं. जब आप रस्सी की तरह खींचना चालू करोगे और अगर सपोज एडिशन बहुत अच्छा है तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा स्टॉक, प्लेसेंटोम कभी देखा है आपने ऊपर से, अभी आगे की किसी एक फोटो में आ जाएगा, तो वो क्या होता है, चूंकि इतना अच्छा एडिशन हुआ, आपने बाहर से खींचा रस्सी की तरह उसको, तो वो पूरा का पूरा प्लेसेंटोम लेके उखाड़ के बाहर आ जाता है. सो ऐसे प्लेसेंटोम रिड्यूस हो जाते हैं. ओके सर, तो इसका क्या रोल है सर इधर, मतलब ये ड्रॉप्सी में? ये बताओ कि फीटस और मदर में कनेक्शन क्या होता है, कहाँ से कनेक्शन होता है? कौन सा ऐसा पॉइंट है जो कौन सा ऐसा प्लेसेंटोम्स प्लेसेंटोम सर, यहीं पे पूरा है. तो अगर Peduncle and cotyledon. अरे प्लेसेंटोम में दोनों ही आ जाते हैं. ओके,
प्लेसेंटा मींस कॉरंकल एंड कोटिलेडॉन पूरा एक स्ट्रक्चर, राइट? सो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये दोनों चीजें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं। सपोज देयर वाज 100 प्लेसेंटोम्स, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 100 जगह पे, 100 जगह पे था। अभी धीरे धीरे वियर एंड टियर से हो गए 50, ठीक है? तो इसका फंक्शन कंप्रोमाइज हो जाएगा। नाउ द साइज मे गेट इंक्रीज, और इफ इट इज नॉट इंक्रीज व्हाट विल हैपन, जितना फ्लूइड या जितना भी मेटाबोलाइट्स या जितने भी यू कैन से इवन टॉक्सिकेंट्स एज वेल, ये जितनी भी चीजें बाहर जानी थी, मदर के ब्लड में जानी थी, वो अब अंदर ही रह जा रहा है, ठीक है? आप देखो थर्ड पॉइंट, जो रूट काज का थर्ड पॉइंट, कि सबसे मेन कंटेंट क्या है? सोडियम और भी बहुत सारे साल्ट। जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे तो वाटर कंटेंट भी बाहर नहीं जाएगा। अगर ये अंदर मेम्ब्रेन के अंदर ही ज्यादा एकोमुलेट हो रहे हैं तो बाहर से वाटर, चूंकि परमेबिलिटी अच्छी है, सारा का सारा वाटर, ज्यादा से ज्यादा वाटर अंदर चला आएगा और ये वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। एक्चुअली प्लेसेंटोम का यही काम था कि जितना भी एक्सेसिव फ्लूइड और टॉक्सिकेंट्स और मेटाबोलाइट्स और एनीथिंग, वो बाहर सीधे उसमें मदर के ब्लड में भेज दे, राइट? जब इनका फंक्शन ही कम है और इनका नंबर कम है और फंक्शन कंप्रोमाइज्ड है, तो ये सारी चीजें बाहर नहीं जा पाएंगी। मोर साल्ट और मोर मेटाबोलाइट्स विल बी देयर इन द दिस फ्लूइड्स, मे बी एलेंटोइक और एमनियोटिक, और बाहर से वाटर सीप होके या फ्लो होके इसका साइज बढ़ा देगा, राइट? ये सर, हाँ सर, ये समझ गया सर। ये एडवेंटेशियल प्लेसेंटेशन वाला थोड़ा सा एक बार बताइए। एडवेंटिशियस प्लेसेंटेशन उसको बोलते हैं कि जब नॉर्मल प्लेसेंटा में जो प्लेसेंटोम्स हैं, ठीक है, नॉर्मल प्लेसेंटोम्स के बीच में कहीं पे खाली स्पेस में एक ग्रोइंग प्लेसेंटोम लाइक स्ट्रक्चर जब ग्रो करता है तो उसको बोलते हैं, ऐसे जब कई पॉइंट्स पे ऐसे छोटे छोटे प्लेसेंटोम लाइक स्ट्रक्चर ग्रो करते हैं तो ऐसे पूरे प्लेसेंटा को ऐसे बोलते हैं एडवेंटिशियस प्लेसेंटेशन। ओके, ये आपको एक मैं नेक्स्ट उसमें एक फोटो दिखा दूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी पूरी, ठीक है? सर तो फिर इसका क्या रोल होगा सर ड्रॉप्सी में? ड्रॉप्सी में इसका कोई रोल नहीं है, ये दरअसल देखा जाता है, ठीक है? इसीलिए है इटियोपैथोलॉजिकल। यू सी द फर्स्ट हेडिंग, इटियोपैथोलॉजी। ओके, सो जो जितने भी आपको 4 पॉइंट्स या 5 पॉइंट दिख रहे हैं वो इटियोलॉजी भी है, वो पैथोलॉजी भी है, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती है ना, जैसे सपोज अगर इन्फ्लामेशन है तो देयर विल बी रेडनेस, ओके? सो उसका रोल अलग चीज है, वो क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर है उसका या नहीं है, वो इटियोलॉजी का तो कोई एजेंट ही नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ पैथोलॉजी दैट पर्टिकुलर थिंग विल बी देयर। तो बिकॉज हाइड्रोलेंटाइज हुआ है तो इसलिए एडवेंटिशियस प्लेसेंटेशन विल बी देयर। और ये बहुत सारी जो जितनी भी फाइंडिंग्स आप देख रहे हो, मोर देन 50% फाइंडिंग्स ये ह्यूमन साइड से हमको मिलती है ज्यादा, क्योंकि वेटनरी में पहली बात तो ये बहुत रेयर कंडीशन है, तो हम इतनी ज्यादा रिसर्च या इतनी ज्यादा फाइंडिंग्स है नहीं। ज्यादातर फाइंडिंग्स हमको, चूंकि ह्यूमन में थोड़ा सा ये कॉमन है, इतना कॉमन भी नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे एक कंसिडरेबल नंबर है जिसके ऊपर रिसर्च हुई है, जिसके ऊपर उन्होंने देखा कि हाँ परमिबिलिटी बढ़ती है या सोडियम का ट्रांसपोर्ट रहता है, ठीक है? तो इस वजह से ज्यादातर आपको, चूंकि पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी पूरे में मैमेलियन में ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो इसलिए ये मिक्स फैक्टर्स है। ओके, यस सर, ठीक है। ओके, सो अब आ जाते हैं दूसरा एक फैक्टर इटियोपैथोलॉजी में, वही मैं आपको अभी बोल रहा था कि डिस्टोकी या पोरली मैनेज्ड काइंग, ठीक है? कहने का मतलब आप ट्रैक्शन लगा रहे हैं, प्रॉपर लुब्रिकेशन के साथ लगा रहे हैं, दैट इज साइंटिफिक वे, प्रॉपर तरीके से लगा रहे हैं, आप आर्क शेप मैनर में खींच रहे हैं बच्चे को, दैट इज ओके। बट in most of the cases when it is handled by a non-vet or a herdman, so they will simply pull out the fetus regardless of uterine condition, regardless of injury that you are causing,
ओके, सो मोस्टली आप देखोगे बच्चा खींच के निकाल दिया उन्होंने, उसके बाद थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है, सो दे आर लीस्ट बॉदर्ड. ओके, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द ब्लड विल नॉट कम आउट. अगर एनिमल खड़ा है और उसको यूट्रस में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी है, सो इट विल नॉट कम आउट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट विल गो डाउन साइड. सो यू विल नेवर नोटिस कि ब्लीडिंग हुई भी है या कितने हमने प्लेसेंटोम्स इसके रप्चर कर दिए या हटा दिए, राइट. सो दैट इज वन थिंग, पोरली मैनेज्ड कार्विंग. ओके, सेकेंड, एज्ड एनिमल विद प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटी. मैंने बोला ना, हर पैरिटी में, with every parity, definitely some of the placentomes will be detached for sure if it is a normal parturition also. अगर नॉर्मल पार्चुरेशन है तब भी कुछ प्लेसेंटोम तो डिटैच होंगे ही होंगे, राइट. अगर सपोज डिस्टोकिया हो गया, अगर सपोज रिटेन फीटल मेम्ब्रेन हो गई, जैसा ये आरएफएम का कंडीशन हो गया. ओके, so again the number of detached placentome will be more. Okay, and then another thing is metritis. It is quite often seen that when there is metritis, the sequelae had been seen, like, okay, in few cases the animal was previously suffering with metritis and then later it developed this hydropsical condition. तो एक predisposing factor metritis को भी रखा गया. बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है इसके कि मेट्राइटिस के, बट कुछ केसेस में मेट्राइटिस भी था. ओके, सो हाउ द केस विल बी प्रेजेंटेड टू यू. कैसे आपको पता चलेगा कि ये कंडीशन हो सकती है, या कैसे आपके हाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस. तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन मींस देयर विल बी रैपिड ऑनसेट. द ओनर विल सिंपली से दैट यस द एनिमल वाज ओके. Within 1 month, the animal developed such a huge abdomen, bilateral distension. Okay, so sometimes it is also called as blotted bullfrog-like appearance. Okay, now because of this much heavy accumulation of fluid, there will be weight loss and weakness to the animal. How the weight loss and weakness can be can you justify this weight loss or weakness? हेड्रोल एंड टॉइस में वेट लॉस और वीकनेस क्यों होता है? खाना खा ही नहीं रहा, फीड इनटेक कम हो जा रहा है तो सर. हाँ जी, एब्डोमेन सर उसका फीड डिस्टेंडेड है इनटेक तो तो कम हो जा रहा है सर. एग्जैक्टली. मैंने स्टार्टिंग में कहा आपसे, व्हेन यूट्रस इज गेटिंग enlarged like anything, okay, so what it will do, it will press another body cavities. So just side to the uterus there is rumen. Okay, so it will press rumen, and therefore the volume of rumen will be very less, I mean less than the normal, and therefore the animal will start taking less feed. Okay, because it's taking less feed and the same time it is having pathological condition, so there will be weakness and weight loss. Okay, now you see the third point, anorexia, tachycardia and dyspnea. It is well understood. Anorexia means because it is pressing rumen, so cannot take much feed. Okay, then because it is pressing heart, so there will be rapid beating. Okay, and then because diaphragm is pressed, so the animal will feel painful while taking breath. Okay, and then there will be some problem due to heavy weight bearing. Okay, because the volume is huge, so the animal will be having more weight on its thigh and its feet, so there will be some very pathological condition or sequelae due to heavy weight bearing. You will see in next slide what is that condition. Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक पॉइंट को इधर देखो आप, एक एक पॉइंट को रैपिड ऑनसेट में क्या होगा, ये सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस कर लेंगे. बिकॉज ऑफ रैपिड